on driving license. In the previous video, we have already seen under section 8 grant of learner's driving license. Now we see under section 9 grant of driving license, that is permanent. Under section 9, that is grant of driving license, there are 10 subsections. Now we see it section wise. Subsection 1 of section 9. Any person who is not for the time being disqualified for holding or obtaining a driving license may apply to any licensing authority in the state, one in which he ordinarily resides or carries on business, or number 2, in which the school or establishment referred to in section 12 from where he is receiving or has received instructions in driving motor vehicle is situated for the issue to him of a driving license. कोई भी व्यक्ति जो तात्पुरता अपात्र नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस रखने के लिए या प्राप्त करने के लिए राज्य में किसी भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी को आवेदन कर सकता है। एक राज्य में उस स्थान की लाइसेंसिंग अथॉरिटी को जहां वह व्यक्ति रहता है या अपना कारोबार करता है, या नंबर 2, राज्य में उस स्थान की लाइसेंसिंग अथॉरिटी जहां पर वह ड्राइविंग स्कूल या ड्राइविंग इस्टेब्लिशमेंट स्थित है, जिसका उल्लेख सेक्शन 12 में किया है, जहां से वह प्रशिक्षण ले रहा है या प्रशिक्षण ले लिया है, मोटर वाहन चलाने के लिए स्थित है, उसे लाइसेंस जारी करने के लिए। Subsection 2. Every application under subsection 1 shall be in such form and shall be accompanied by such fee and such documents as may be prescribed by the central government. प्रत्येक आवेदन जो सब सेक्शन 1 के अंतर्गत है एक निहित फॉर्म में किया जाएगा और उल्लेखित शुल्क के साथ व आवश्यक दस्तावेजों के साथ उस पद्धति से किया जाएगा जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा उल्लेख किया जा सकता है। Subsection 3. The applicant passes such test as may be prescribed by the central government. He shall be issued the driving license, provided that no such test shall be necessary where the applicant produces proof to show that first of a, the applicant has previously held driving license to drive such class of vehicle and that the period between the date of expiry of that license and the date of the application does not exceed 5 years, or second of a of subsection 3 of section 9. The applicant holds or has previously held a driving license to drive such class of vehicle issued under section 18, or third of a of subsection 3 of section 9. The applicant holds a driving license to drive such class of vehicle issued by a competent authority of any country outside India, subject to the condition that the applicant complies with the provisions of subsection 3 of section 8. B of subsection 3 of section 9. The applicant is not suffering from any disability which is likely to cause the driving by him to be a source of danger to the public, and the licensing authority may for that purpose require the applicant to produce a medical certificate in the same form and in the same manner as is referred to in subsection 3 of section 8, provided further that a driving license for driving an adapted vehicle may be issued to the applicant if the licensing authority is satisfied that he is fit to drive such motor vehicle. यदि आवेदक ऐसी ड्राइविंग टेस्ट पास कर लेता है जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा उल्लेख किया जा सकता है या किया गया है,
तो आवेदक को लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा, बशर्ते कि ऐसी कोई भी ड्राइविंग परीक्षा या टेस्ट की आवश्यकता नहीं होगी जहां आवेदक प्रमाण प्रस्तुत करता है कि फर्स्ट ऑफ ए आवेदक के पास पहले उस वर्ग का लाइसेंस था जिस वर्ग के लाइसेंस के लिए उसने आवेदन किया है, और पहले के लाइसेंस की समाप्ति और अभी जो आवेदन किया है करने के बीच की अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं है, या सेकंड ऑफ ए ऑफ सबसेक्शन 3 आवेदक ने जिस वर्ग के लाइसेंस के लिए आवेदन किया है उस वर्ग के वाहन चलाने का लाइसेंस वह सेक्शन 18 के अंतर्गत रखता है या पहले रखता था, या थर्ड ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 9 आवेदक रखता है ऐसे वर्ग का वाहन चलाने का लाइसेंस जो उसे किसी अन्य देश की कॉम्पिटेंट लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया है, बशर्ते कि आवेदक सेक्शन 8 के सब सेक्शन 3 की प्रावधानों की पूर्तता करता है। आवेदक गलत बी ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 9 आवेदक ग्रस्त नहीं है किसी अपंगता से जो अपंगता संभावित कारण बनती खतरे का उसके द्वारा मोटर वाहन चलाने से सामान्य जनता के जीवन को, और लाइसेंसिंग अथॉरिटी इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवेदक को कह सकती है कि वह चिकित्सा प्रमाण पत्र पेश करे उसी प्रकार से और उसी पद्धति से जैसे सेक्शन 8 के सब सेक्शन 3 में उल्लेख है, बशर्ते कि एडेप्टेड व्हीकल चलाने के लिए लाइसेंस प्रदान किया जा सकता है आवेदक को, यदि लाइसेंसिंग अथॉरिटी संतुष्ट है कि आवेदक एडेप्टेड वाहन चलाने के लिए फिट है या सक्षम है। नाउ सबसेक्शन 4 where the application is for a license to drive a transport vehicle, no such authorization shall be granted to any applicant unless he possesses a driving certificate issued by a school or establishment referred to in section 12। जहाँ पर आवेदन ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के लाइसेंस के लिए किया गया है, तो ऐसे किसी भी आवेदक को ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने के लिए तब तक लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक वह अपने पास एक ड्राइविंग सर्टिफिकेट नहीं रखता हो जो कि उसे जारी किया गया हो उस ड्राइविंग स्कूल या उस ड्राइविंग इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा जिसका उल्लेख या संदर्भ सेक्शन 12 में है। सबसेक्शन 5 where the applicant does not pass the test, he may be permitted to reappear for the test after a period of 7 days, provided that where the applicant does not pass the test even after 3 appearances, he shall not be qualified to reappear for such test before the expiry of a period of 60 days from the date of last such test, and such applicant shall be required to complete a remedial driver training course from any school or establishment under section 12। यानी जहां आवेदक ड्राइविंग परीक्षा में असफल हो जाता है तो उसे दोबारा परीक्षा देने की अनुमति प्रदान की जा सकती है 7 दिन की अवधि के पश्चात, बशर्ते कि जहां आवेदक ड्राइविंग परीक्षा या टेस्ट पास नहीं करता है और अतिरिक्त 3 अवसर प्रदान करने पर भी, तो वह आगे ऐसी किसी भी ड्राइविंग परीक्षा या टेस्ट के लिए पात्र नहीं होगा जब तक अंतिम टेस्ट से 60 दिन की अवधि तक, और ऐसे आवेदक को चाहिए होगा कि वह रेमेडियल ड्राइवर ट्रेनिंग कोर्स किसी भी ड्राइविंग स्कूल या इस्टेब्लिशमेंट से सेक्शन 12 के अंतर्गत पूरा करें। सबसेक्शन 6 द टेस्ट of competence to drive shall be carried out
in a vehicle of the type to which the applicant refers, provided that a person who passed a test in driving a motorcycle with gear shall be deemed also to have passed a test in driving a motorcycle without gear. गुणवत्ता की परीक्षा वाहन चलाने के लिए उसी प्रकार के वाहन में ली जाएगी जिस प्रकार के वाहन चलाने के लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, बशर्ते कि वह व्यक्ति जिसने गियर वाली दोपहिया मोटरसाइकिल चलाने की परीक्षा पास कर लिया है तो यह माना जाएगा या गृहीत धरा जाएगा कि उसने बिना गियर वाली टू व्हीलर चलाने वाली परीक्षा भी पास कर ली है। Subsection 7. When any application has been duly made to the appropriate licensing authority and the applicant has satisfied such authority of his competence to drive, the licensing authority shall issue the applicant a driving license unless the applicant is for the time being disqualified for holding or obtaining a driving license. Provided that a licensing authority may issue a driving license to drive a motorcycle or a light motor vehicle, notwithstanding that it is not the appropriate licensing authority. If the licensing authority is satisfied that there is good and sufficient reason for the applicant's inability to apply to the appropriate licensing authority, provided further that the licensing authority shall not issue a new driving license to the applicant if he had previously held a driving license unless it is satisfied that there is good and sufficient reason for his inability to obtain a duplicate copy of his former license। यानी जब कोई आवेदन विधिवत तरीके से उचित लाइसेंसिंग अथॉरिटी को किया गया है और आवेदक ने संबंधित लाइसेंसिंग अथॉरिटी को ड्राइविंग टेस्ट देकर अपनी ड्राइविंग क्षमता या ड्राइविंग काबिलियत सिद्ध कर दिया है, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी आवेदक को ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर देगी। जब तक आवेदक अल्प समय के लिए या तात्पुरता अयोग्य नहीं होता है ड्राइविंग लाइसेंस रखने से या ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से, बशर्ते कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी जारी कर सकती है दोपहिया या हल्के मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस ना मानते हुए कि वह उचित लाइसेंसिंग अथॉरिटी नहीं है। यदि लाइसेंसिंग अथॉरिटी का समाधान हो जाता है कि आवेदक के पास उचित लाइसेंसिंग अथॉरिटी को आवेदन ना करने के लिए सही व पर्याप्त कारण है, और आगे बशर्ते कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी आवेदक को नया ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं करेगी, कभी पहले उसके पास ऐसा ड्राइविंग लाइसेंस था, जब तक कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी संतुष्ट नहीं हो जाती है कि आवेदक के पास सही और उचित कारण है पूर्व के लाइसेंस की डुप्लीकेट प्रति प्राप्त करने में असमर्थता का। Now subsection 8. If the licensing authority is satisfied after giving the applicant an opportunity of being heard that A. He is a habitual criminal or habitual drunkard, or B. He is a habitual addict to any narcotic drug or psychotropic substance within the meaning of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985, 61 of 1985, or he is a person whose license to drive any motor vehicle has at any time earlier been revoked. It may, for reasons to be recorded in writing, make an order refusing to issue a driving license to such person, and any person aggrieved by an order made by a licensing authority under this subsection may within 30 days of the receipt of the order appeal to the prescribed authority। आवेदक को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात यदि लाइसेंसिंग अथॉरिटी का समाधान हो जाता है कि
आदतन अपराधी या आदतन पियक्कड़ है, या बी आदतन व्यसनी है किसी नशीले पदार्थ का या मनोदैहिक पदार्थ का, मादक दवा और मनोदैहिक अधिनियम 1985 के अंतर्गत, या आवेदक वह व्यक्ति है जिसका लाइसेंस मोटर वाहन चलाने के लिए पहले कभी रिवोक किया गया है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंस जारी न करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके लाइसेंस जारी न करने का आदेश पारित करती है। ऐसे व्यक्ति को और कोई भी व्यक्ति जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा ऐसा आदेश पारित करने से पीड़ित हुआ है इस सब सेक्शन के अंतर्गत, तो ऐसे आदेश के विरुद्ध उल्लेखित अपीलेट अथॉरिटी को ऐसा आदेश प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है। सबसेक्शन 9, एनी ड्राइविंग लाइसेंस फॉर ड्राइविंग ए मोटरसाइकिल इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल आफ्टर सच कमेंसमेंट बी डीम्ड टू बी इफेक्टिव फॉर ड्राइविंग ए मोटरसाइकिल विथ और विदाउट गियर। कोई ड्राइविंग लाइसेंस दोपहिया वाहन चलाने के लिए जो इस अधिनियम के शीघ्र आरंभ होने के पूर्व या कार्यशील होने के पूर्व से फोर्स में है, तो वह लाइसेंस इस अधिनियम के आरंभ होने के पश्चात भी इन फोर्स रहेगा। गियर वाली या बिना गियर वाली टू व्हीलर चलाने के लिए। सबसेक्शन 10, notwithstanding anything contained in this section, the driving license to drive e-cart or e-rickshaw shall be issued in such manner and subject to such conditions as may be prescribed। ना मानते हुए उन प्रावधानों को जो इस सेक्शन में दिए हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ई-कार्ट और ई-रिक्शा चलाने के लिए इस पद्धति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जारी किया जाएगा जैसा कि उल्लेख किया जा सकता है। Thus, these were the 10 subsections of Section 9, that is grant of driving license permanent. Thank you very much.